17 मार्च को मेरे पति जी गांव गए थे और उधरे रह गए। मेरी बहन को लेके अपना मेरे मायके चले गए। वहाँ से आए ने 3 महीना हो गया। अब जून तक 3 महीना हो गया। आ नहीं पा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते नहीं आ पा रहे हैं। फोन से भी बात नहीं हो पा रही है। बिजली उधर कम रहती है इसलिए बात भी नहीं हो पा रही है। अब इधर पैसे की भी तंगी है। खाने पीने के लिए दिक्कत हो रही है। एक दूसरे से किसी तरह थोड़ा थोड़ा मांग के काम चला रहे हैं। चलिए अब नहीं रह गया और मैं मिल गया और अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। Actually, meeting Joseph was a huge coincidence, but it was also, on the hindsight, it was pretty clear that it was destined. Because in 1997 or 8, when we met in Ranchi, where I belong to, when I went there and from Delhi in my holidays, my mother and my sister were discussing if we were expecting a baby, maybe somebody could be very helpful, and why not Joseph? I asked them, who is Joseph? So Joseph was actually a rickshaw puller who was actually had an assignment to pick my nephew, my sister's son, from home and drop him to school, and that's it. And the rest of the time he was supposed to do his regular rickshaw pulling. And I was quite amused with the idea that how a rickshaw puller can go and stay with us at home and all that. But when we met Joseph, he sounded like not a rickshaw puller but some spiritual guru or something. He sounded very peaceful, very contented and very contained and very a visionary kind of person. The way he would talk very quietly, very peacefully, like at the end of gathering all knowledge of your life, the way you would be very humble to talk, he is like that. He is not disturbed that he is poor, he is not disturbed that he has a lot of problem, he is not disturbed that he is at the bottom of the pyramid in terms of economic ladder. Not at all. If the world would have not given the developmental definition, he would not be coming to Delhi to work. But when I talked to him and I asked him that this is how we are, this is who we are, would you like to? And he was very honest. No, I don't know. I mean, what will I be good for? I said, no, you don't have to be good for. You just have to be a nice person and all that, and you will learn gradually. शुरू में तो सबसे शुरू गया तो मैं तो पक्का का घर तो कभी देखा नहीं था। जब रांची गया तब मतलब जैसे पक्का घर देखा तो उसमें मतलब कैसे सफाई करना होता है, क्या होता है। शुरू में जब भाईजान पूछे कि आप हमारे साथ दिल्ली चलोगे, तो मैं बोला कि सर मैं दिल्ली तो जाऊंगा लेकिन मुझे काम करना कुछ नहीं आता, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। तो भाईजान बोले कि देखो, कोई भी काम आदमी पैदा होने से पहले सीख के नहीं आता है। जब इस दुनिया में आता है उसके बाद में यही सब कुछ सीखता है। बस आदमी को वो चीज़ करने की मतलब वो होना चाहिए, उमंग होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, तो फिर वो अपने आप सीख जाता है। तो बोला कि शुरू में हम बता देंगे। तो हम बोले क्या काम करना पड़ेगा वहाँ? तो बोले जो भी मतलब घर का जो भी काम होगा वो काम करना है। तो वो भी लेकिन वही घर के आदमी की तरह रहना है। मैंने कहा ठीक है, फिर तो चलूँगा। He actually agreed, and I thought that that's it.
It changed us. It changed his own destiny. It changed many things. It changed in my house, my children, the way they grew up. They are very much at peace. It looks like that he poured in his peace into my children. I wish that he, lasted with us to rear both the children, but he actually has spent more time with my first child for 4 years, and then he had to leave. But it was just awesome. It was like he adjusted in our house like the way fish would adjust in a pond. So that's what he was. घर में चाहे कोई दूसरे बोलते थे कि इसके घर में तुम काम करते हो, तो इसके घर में काम करते हो, आपस में जैसे कहीं डॉग वगैरह घुमाने जाते थे तो बोलते थे किसके घर में काम करते हो, इसके घर में। हर लोग उस तरह के एक काम करने का आदमी के हिसाब से मतलब बातचीत करते थे, चाहे देखते थे, मुझे पूछते थे। लेकिन मुझे अंदर मन में ये नहीं फील होता था कि मैं किसी के घर में काम कर रहा हूँ। ऐसा लगता था मैं अपने घर में, और जो भी काम करता था वो मैं अपना मतलब घर जैसा वैसे काम करता था। मेरा जब मैं गांव जब आता था छुट्टी, तो आप मतलब मुझे छोड़ते नहीं थे कि नहीं मुझे जाना है। फिर हम झूठ बोलते नहीं थे, क्योंकि मम्मा बोलती थी कि झूठ मत बोलना, जो भी है सच बताना। तो मैं बोलता था कि मैं अपने मम्मी के वहाँ जा रहा हूँ, अपने गांव जा रहा हूँ, और वहाँ बिजली भी नहीं है और दूध भी नहीं मिलता है, वहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो भी आप बोलते थे कि नहीं मैं फिर भी जाऊँगा। बहुत रोते थे जब ट्रेन में चढ़ जाते थे, तब भी मतलब आप बहुत रोते थे। मैं जोसेफ भैया के साथ जाना है। जोसेफ का फ़ोन आया तो बहुत दिनों के बाद आया, तो मैंने कहा कि अरे बड़े दिनों के बाद याद किया इसने। तो कैसे हो जोसेफ? मैं तो जी झारखंड में हूँ, मेरे गांव। अच्छा, कब आ रहे हो? बस जी मैं आया और दूसरे दिन लॉकडाउन हो गया, मैं तो यहाँ फंस गया हूँ। बीवी बच्चे वो दिल्ली में हैं, मैं यहाँ हूँ। समझ नहीं आ रही क्या करें, कैसे करें। बाकी तो सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, फैमिली भी ठीक है। आप कैसी हैं अम्मा? मैं तो ठीक हूँ बेटा। बस फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने आके अपनी बेटी को बताया, शफाली को, सामा को बताया। उनका उसका फ़ोन आया था जोसेफ का, वो वहाँ झारखंड में है, फैमिली उसकी दिल्ली में है। मेरा ख्याल है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। इन लोगों ने फ़ोन किया तो पता चला कि ठीक ठाक क्या, इनकी तो बुरी हालत है। वो वहाँ फंसा हुआ है विदाउट एनी मनी इन हैंड, और बीवी और बच्चे यहाँ पे हैं। उनकी बुरी हालत, आ नहीं सकता, लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रेन नहीं है, बसेस नहीं हैं। गांव से, उसका गांव है झारखंड में, तो रांची जो शहर है उससे बहुत दूर है, आ भी नहीं सकता। I was planning a journey from Delhi to Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand to do an ethnographic research on the migrant crisis during the COVID-19 pandemic. So when I heard about Joseph Bhaiya, I knew that I had to, we had to do something to help him. So when we did this journey and we went to Jharkhand, we went to his village, his wife's village where he was. It's about 170 kilometers from Ranchi. And we went there and we picked him up and we brought him to Ranchi, from where we put him on a flight and sent him back to Delhi. अभी जब तकरीबन 19-20 साल के बाद या 18 साल के बाद, 17-18 साल के बाद जब जोसेफ से अभी मुलाकात हुई, इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोविड के पीरियड में, जब पता लगा कि वो झारखंड में फंसा हुआ है और उसकी फैमिली यहाँ पर है, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, गुड़गांव के पास रहते हैं, और जब हम उनसे बात करने लगे और पता लगा कि वो थोड़ा परेशान है कि वो दिल्ली आना चाहता है, और लेकिन तब भी उसे टटोल कर निकालना पड़ा कि उसके साथ पैसे की भी प्रॉब्लम है, खाने पीने की भी प्रॉब्लम है, राशन की भी प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, वो निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल पीस में है। ऐसा लग रहा है कि एक ही बार खाना खा के बैठा है, अब 50 साल के बाद ही उसको भूख लगेगी।
बिल्कुल परेशान वैसे नहीं है, उसको टटोल टटोल के निकालना पड़ा कि कैसे क्या दिक्कत है। अभी मैं लॉकडाउन से पहले आया था इधर, अपना लाइसेंस मैं रिन्यूअल कराया था हरियाणा का लाइसेंस को यहाँ झारखंड के लिए। तो वो लाइसेंस लेने के लिए आया था इधर, और मैं अपनी वाइफ का सिस्टर को छोड़ने के लिए सिमडेगा गया तो लॉकडाउन हो गया, तो मैं उधर फंस गया। अब वहाँ से यहाँ अपना घर आने के लिए या दिल्ली जाने के लिए मेरे पास कोई मतलब उपाय नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तो उतने में जैसे बात होती है आप लोगों के साथ, फिर आप लोग ये बोले कि कोई चिंता मत करो, हम लोग हमको लेके आने का भी वो करेंगे, उपाय करेंगे, और जो इधर बच्चे हैं फंसे हुए हैं उसके लिए चिंता मत करो। जो भी वहाँ जो खर्चा लगेगा, चाहे जो भी है पैसे दिए, वहाँ सारा राशन पानी दिए, और मतलब मुझे मदद मिला। तो अभी भी अगर आप लोग नहीं आते तो मुझे यहाँ से जाना मुश्किल था। तो आप लोग आए और मुझे मतलब लेके जाने के लिए, इसके लिए अब क्या बोलूँ कि हर आदमी ऐसा कोई करता नहीं है। जो आदमी इंसान तो होता है मगर उसके अंदर जो इंसानियत होती है तो वो किसी किसी में होती है, जो आप लोगों में है, जो आप लोगों के द्वारा से मतलब मुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं जा पा रहा हूँ। पहली बार जा रहा हूँ इसलिए थोड़ा मतलब घबराहट जैसी लग रही है अंदर से। आने के मतलब जैसे मैं घर आया उसके बाद बहुत अच्छा हुआ कि मुझे लगा कि अपने बच्चों के पास मैं पहुंच गया, तो काफ़ी अच्छा लगने लगा। फिर मैं 2 हफ्ते के लिए नीचे कमरे में क्वारंटाइन रहा, इस कमरे में रहता था। इसमें अपना चरपाई बिछा के और ऊपर से फिर पंखा लेके आया था और पंखा को यहाँ लगाया और फिर यही रहता था। यही 2 हफ्ते यही रहा। बच्चे आते थे तो यहाँ सीढ़ी में आते थे और वहाँ वो से बैठ के वो बात करते थे। मैं यहाँ ये स्टूल को यहाँ रख के बैठ जाता था, फिर वो बातें करते थे। लगता था थोड़ा कि कब बाहर निकलूं, एक कमरे में रह के वैसे भी मतलब परेशानी जैसे लग रहा था। तो मैं लेकिन 2 हफ्ते रहा, उसके बाद ऊपर आया, फिर बच्चों के साथ मिला, फिर बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिल के। अब जहाँ काम अभी जा रहा हूँ वहाँ भी अभी पूरा क्लियर नहीं बता रहे हैं कि तुमको रखेंगे कि नहीं रखेंगे या हिसाब दे दें, ये भी अभी कुछ वो लोग बता नहीं रहे हैं। जबकि मैंने पूछा कि अगर आप लोग को नहीं रखना है तो साफ साफ बता दीजिए, और जो भी देना है वो मुझे दे दीजिए। और जो लॉकडाउन का जो सैलरी है वो भी अगर आप लोग देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए कि हम नहीं देंगे। लेकिन वो भी नहीं बता रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि माताजी कह रही हैं कि तुम ड्यूटी आते रहो। तो मैं वही अभी तक तो ड्यूटी जा रहा हूँ। अब देखता हूँ जब सैलरी मिलती है तो क्या होता है कि वो क्या देंगे कि नहीं देंगे।
अरे मतलब अभी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब क्या करें, कि घर वापस जाएं या मतलब इधर रहें। हम यही चाहते हैं कि गांव में मतलब बच्चों का जो फ्यूचर है वो मतलब अगर यहाँ जैसे रहेंगे तो वैसे वहाँ नहीं होगा। वहाँ अलग माहौल है, वहाँ का माहौल अलग है। और यहाँ जो अगर बच्चे रह जाएं, मान लीजिए अगर यहाँ पढ़ लिख लें तो यहाँ इनका फ्यूचर कुछ होगा, और नहीं तो गांव जाएंगे तो फिर वही अपना जो कमाना है और खाना है, बस वही है। सारा चीज़ अपने बच्चों के लिए ही छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मैं तो इतना साल अभी मतलब 42 ईयर्स हो गया, तो अभी तक तो मैं तो अपने लिए कुछ किया नहीं। आगे भी अब इधर मैं कुछ तो कर नहीं पाऊँगा। अब जो भी करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो स्थिति मेरी गुजर रही है वो स्थिति बच्चों के ऊपर में ना बीते, कि बच्चे कुछ अच्छे से पढ़ लिख जाएं और कल को बच्चे अपना भविष्य में कुछ मतलब अच्छी तरह से अपना गुजारा कर सकें। तो हम लोगों ने उसके साथ फिर अभी अपना रिश्ता बनाने की कोशिश की कि हम लोग उसको कुछ मदद भी कर सकें और फिर से वो वापस जॉब में आ सके। लेकिन एक चीज़ जो अभी मैंने देखी उसके अंदर जो पता लगा कि अब चूँकि बच्चे हो गए हैं, बीवी हो गई हैं, तो वो ये भी सोच रहा है कि गांव वापस चले जाएं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्टेबल नहीं है। लेकिन वो उसके अंदर ये नहीं है कि गांव जाने में उसको कोई दिक्कत है या शहर में रहने में कोई दिक्कत है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये है कि हम लोगों की एक इंडिपेंडेंट इंडिया में हम लोग जब ग्रो कर रहे हैं तो वो लाचारी और मजबूरी के तहत कभी उसको रिक्शा चलाना पड़ा, कभी मजदूरी करनी पड़ी, कभी ड्राइवरी करनी पड़ी। वो समहाउ वो नहीं चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं उसी कंडीशन में फिर से पले बढ़ें, और उसको ये रास्ता दिख रहा है कि ये जब तक अच्छे स्कूल में नहीं जाएंगे, अच्छे माहौल में नहीं रहेंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं, तो शायद यही ज़िंदगी फिर से रिपीट होगी। तो वो इस वजह से कि कहीं बच्चे आगे वाले में फिर हमारे ही लेवल पे ना रह जाएं या वही दिक्कत ना हो, क्योंकि उसने तो अपने आप को संभाल लिया, उसको नहीं पता कि उसके बच्चे संभाल पाएंगे कि नहीं अपने आप को, क्या वो पीस में रहेंगे गरीब होकर भी, शायद ना रह पाएँ। तो इस वजह से अब उसकी कोशिश ये है कि कैसे हम जो है उसके ऊपर काम करें। और हमने ये सीखा उससे कि कैसे हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ द कंट्री कैसे उसको हम मदद करें कि ये वो अचीव कर पाए कि उसके बच्चे जो हैं वो फिर से उस लाचारी में ना हो और एक सोचने समझने और ज़िम्मेदार सिटीज़न बन के देश में रहे। और हम उसके साथ अभी काम भी कर रहे हैं और कोशिश यही है कि अगला जनरेशन जो जोसेफ का है वो ऐसा हो कि वो तो बिना पढ़े लिखे स्पिरिचुअल था, उसके बच्चे कम से कम पढ़ लिख के स्पिरिचुअल रहे।